भी पॉइंट बहुत दिन से नहीं था। मेरे को भी बाबा सात्विक लाइफ से ये कनेक्शन दिया। उस टाइम पे बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए, स्टडी करने के लिए सजेस्ट किया था, बहुत सारे किया भी है। वो नॉलेज के थ्रू क्या पता चला, अभी तक दीदी ने बोल रहे थे, भावना दीदी, ब्रेडेरियन। यस, तो ब्रेडेरियन के बारे में बहुत सारे मैंने देखा, इंटरव्यू देखा, स्टडी भी किया। एक तरफ से डायरेक्ट एग्जाम्पल है, आप ये गुजरात में प्रहलाद जानी करके एक जैन मुनि था, आपको तो पता चलेगा। तो वो तो 70 years has not even taken any drop of water also. 70 years, not 1 day, 2 days. 70 years he survived. So, and also that experiment you can check in YouTube also. 1 week they put him in a hospital under someone's checking for 1 week in Bombay only. Even in that group, BK, one doctor also was there. So I think 7-8 doctors, even foreign doctors also included in that for investigation. They put him in one custody in a lab. They used to check every day, that the urine part, everything they used to take the parameters, everything. It was very so much normal. And urine part also was going on. So it's a wonder for the science. Without having water, he was passing urine? Without having water, he could pass urine? Yes. So that is what the wonder. They used to do every day checkup. It's on online only, not in all the CCTV camera, everything they put under some custody. 1 week he was under their control. So they have done all the checkup. Every day they used to take, not only day, every 3-4 hours they used to take the check lab and all that. So it was wonder for the world also. And he was doing very well, everything, all the this one also. For this, even when you go to so many Brazilians studied, even in so many 20 years, 15 years, they are not taken. They are marathon runners and weightlifters are there. Even including Brazilians, our Dr. Sachin Bhai is since 15 years, I think 10-15 years, he has not taken cooked food. He is on fruitarian only. Juice also he will take. But almost 6 months he has not taken anything on water. He was survived only on juice. He survived. He has done so many investigation in a medical way, even spiritual way also. So it's a wonder for the knowledge for us. But it is true. We can do. As you said, as Baba said, Sankalp is the power. Thought is the power. Either power is there when we have a soul power, Atmik Bal, we can face anything. For example, if we listen to you, before, we used to think how Didi can survive only with the cat. It's a question for us. Because we never ever seen, never ever read like this. And you are very active. Personally, we have seen you. Before also we are not confirmed. But when we see you personally for 2 days, it was wonder for us. Definitely. Though we know the knowledge, the food is not the main. Still we feel we are so active, mental and physical. Not only physical, mental, emotional, was very much stable. So how it was possible when we think like that? Baba, what he gives answer, it is you only. You are completely, we can say in a Sato Pradhan state. Your thought, drishti, vritti, everything is completely in a different way. That gives you the energy to survive. Not the tea or anything. According to me, I don't know what it is there, but what I found, so that is your way of living lifestyle, physical and mental. So that is why you are so. Even though some people, when you see others, vegetarians or Jews or something, they are not much face expression also, facial, physical appearance also not like you. See, what Baba has turned me, you and there, even though they are taking juice and everything, but there some are okay, some are not. They feel like weak, they look like weak, but they are physically healthy. But for us, physical appearance is also important, So if they are not looking the healthy way in the face and body structure, we will not accept that the lifestyle. Oh, it's not good like that. We will see. But when we saw you as personally, then thinking, Baba gave this from the answer. That is your thought. Because you are so deep into that level,
That is showing in your face. Face is the index of our mind. What we say, even the scientific way, spiritual way. That is showing in your physical and mental what I feel. So finally, it's yes, what you said, the cooked food, because we are adopted when we born. For example, if I am 50 years, since the childhood, I am used to have a food. The body cells and all adjusted to that. I can't overnight. I can't change this one. If at all a changed person, that is their previous birth sanskar, many qualities, maybe it will be. What that 70 years prior, he was not taking. Suddenly one day he left everything and he survived. So what I studied for them. Some are by practice they have done. These two also different qualities. Some by birth, some by adaptation or by practice. Your case is totally different. Situation came like that, but Baba made you like that. That is also because of your karma's result. You have done bad at the same time and done more good also, I feel. That is why even though if you have this karma bhog, you're not facing like karma bhog, like a karma yogi you are saying. So that is also depend on the karma account only. So that is completely different. But cooked food, yes, we need because we are adjusted. Unless our mind is completely 100% with soul power, we can leave everything. Not by someone says we have to adapt. Someone told like Bhakti Marga, it will not work out. Because I have done up and down so many things with this. Try and error. So finally what came to one conclude, it has to come by pakka knowledge, clarity. How we were adapted now, that Srimad and all, what you said, that with that knowledge we got the power also. We can tell in front of everybody what is Srimad and all, because you've given the knowledge clarity. So we have 100% clarity in that. Like change in this knowledge also. When we deeply knows about this, definitely when comes in within our mind, our heart, we will leave everything. We can leave. But till that time, we should have it not by force or by someone says we should not adapt this. What you said, that is exactly correct. But about these Brazilians, I have studied many. Baba has showed me many things. Even the Dr. Sachin Bhai also stayed with them for many days. He also investigated all those things. In Himalayan Pradesh, many they will do Navaratri Vrat. You know, in your side, Navaratri Vrat they will do nowadays. For 9 days, they will leave without water or anything. Like that fasting they'll do. Often they do. It's a big karma aushadha, we will say. Fasting is the best medicine. They are accepting that this one, they are doing that, they are getting very good result in all the many diseases. Even Reena tried for 4-5 days without having water and all. It was different this one status will be there. But when we are in the grihastha, we can't follow all those things because oppose will be there. So many things will be there. So, but it is really wonderful. That time I came to know your this power. So that is why BD is so much powerful, because we are not doing anything for digestion. All the power is vital power, we can say. You are accumulated that power. You are using for the good things. We are all using for that for the unwanted things, eating and digesting excretion. So all these processes we are spending our energy. So that is why we are not so much energy, I feel. What do you say about Brazilian? Sometimes other time you can say, never say it is. You can say it is. Yeah. Thank you very much, Veena Ben, for all your information what you have given about Brazilians also, about those Muni also. But for this, with this, Baba was giving me more clarity about it. कंचन भाई, माइक म्यूट करेंगे क्या आप? So, the same time, Baba was answering me all these questions also. Okay. So, Brazilians का जो बाबा ने बोला, sorry, maybe English start कर दिया. जिनको नहीं समझ में आता है, उनके लिए sorry बहुत. तो Brazilians का मतलब है जो सिर्फ हवा पे जीते हैं. कहने का भाव वो था वीना बेन का, एंड भावना बेन बोल रहे थे ब्रिजेरियंस है जो सिर्फ हवा के ऊपर जीते हैं,
ना पानी लेते हैं, ना खाना खाते हैं, स्कूल का खाना जो है, फ्रूट्स वेजिट जो भी कुछ होगा, ओनली हवा। हाँ, हवा पे जीने वाले ऐसे लोग हैं, कम्युनिटी है ऐसे, उन्होंने बताया। मुझे नहीं पता है, मैंने नहीं सुना है, बट एज पर भावना बेन एंड वीना बेन व्हाट दे सेड, आई एम टेलिंग। तो मेरे को इसमें भी मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सेम ऐसा ही जब पहले भी भावना बेन ने जब ये शेयर किया और मैं बाबा के सामने ये बात करती, तो बाबा ने यही मुझे हाँ बात समझाई थी कि हमारा फ्लैश, हमारा ब्लड, हाँ, ये जो भी बनता है ना, ये हमारा बॉडी है ना, ये 5 एलिमेंट से बना है। 5 एलिमेंट्स टुगेदर जब जुड़ते हैं, हाँ, उससे ये हमारा बॉडी बना है। तो उस बॉडी को पालने के लिए भी ये पूरे 5 एलिमेंट्स की जरूरत होती है। और इसीलिए पूरे 5 एलिमेंट्स कौन से इसमें मिल सकता है, तो वो था वनस्पति। हाँ, तो इस दुनिया में जितने भी लिविंग बींग्स है, हाँ, वो भले ही पानी में रहो, भले ही हवा में रहो, भले ही पेड़ पे रहो, भले ही अर्थ पे रहो, तो जितने भी लिविंग बींग्स है वो कहीं ना कहीं इन 5 तत्वों से बने हुए हैं। हाँ, कोई एक संपूर्ण चीज को हाँ खाने के लिए कुदरत ने उनको बनाया हुआ है। ठीक है, ये कहीं मुझे बाबा ने मुझे ये आंसर दिया है। मैं कौन गलत है कौन सही है, मैं इस पे जा ही नहीं रही हूँ। ब्रिजेरियंस ये कम्युनिटी हो सकती है क्या नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव देम रॉन्ग और राइट, बट व्हाट बाबा इज गिवन मी द इंफॉर्मेशन दैट आई कैन शेयर विथ यू ऑल। हाँ, बाबा ने जो मुझे, अगर हम डिस्कस, तो फिर क्या करें, अभी ये बात पे डिस्कस करें या हमारा ये कर्जे के ऊपर खत्म हो जाए, बाद में फूड का टॉपिक लेंगे उसके ऊपर डिस्कस करें, आप बताइएगा। अभी ये हॉट मोमेंट है, पर ये डिस्कस कर खत्म दीजिए। कर देना चाहिए। नहीं, कर्जे कर देना के चाहिए ऊपर, लास्ट के कर्जे 10 के मिनट ऊपर में। क्योंकि फिनिश कर ये फिर दीजिए से और एक बार पूरा कंप्लीटली बाबा के साथ बात कर दीजिए, डिसाइड कर दीजिए, बिकॉज वी आल्सो वांटेड टू नो थ्रू यू, बिकॉज बाबा विल दैट इज व्हाट बाबा इमीडिएटली ही गेव मी द आंसर्स। सर्टन चीजें बाबा तुरंत ही अनुभव के साथ में मुझे समझाते जाता है। आप वहां पे बोलते जाते हो और बाबा मुझे यहाँ पे वही बातें समझाते जाता है ना। अभी जैसे ब्रिजेरियन के बारे में बोला, अगर मैं बोलूं तो मैं भी 10 महीने तक आफ्टर माय सर्जरी कहीं ना कहीं में भी ब्रिजेरियन जैसी ही जीवन जिया है फॉर 10 मंथ इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी, जहाँ मुझे ये पता चला कि मेरा खाना पीना ही बंद हो गया। ये जो स्वेलो करने वाला जो मेरा ये था ना, तो ये यहाँ पे ही मेरा सब कुछ फंस जाता था, जाता ही नहीं था अंदर, वॉमिट हो जाता था, कुछ भी नहीं जाता था फॉर 10 मंथ। तो एग्जैक्टली मेरा वो ब्रिजेरियन जैसा ही स्टेज था। तो उसके बाद में मेरा धीरे धीरे फिर से शुरू हुआ। मगर ये जो 10 मंथ में मेरा जो शरीर ने क्या किया, व्हाट माय बॉडी डिड दैट टाइम, उसका तो फंक्शन चालू ही है, किडनी लिवर ये सबको फंक्शन चाहिए, और वो फंक्शन तभी होगा जब उसको इनपुट होगा, नहीं तो वो डेड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मशीन भी हम बनाते हैं, अगर उसको यूज नहीं करें तो जंग आ जाती है ना। अगर उसको कोई भी हम ऑयलिंग नहीं करें, कुछ यूज नहीं करेंगे, वो पड़े पड़े खराब हो जाती है। ऐसे ही हमारा बॉडी भी है, बॉडी के सारे पार्ट्स भी है। अभी मेरे बॉडी को अगर पानी अंदर नहीं जा रहा है, खाना अंदर नहीं जा रहा है, तो मेरे लीवर पे, मेरे किडनी पे, इन सब पे इफेक्ट हो रहा था। तो डॉक्टर जो है वो एग्जामिन बीच बीच में कर रहे थे, बट मेरी बॉडी कैसे सरवाइव किया कि मेरे बॉडी के अंदर जितने फैट्स थे ना, जो जमा हुआ था फैट, हाँ, जितने मसल्स है ये है, तो बॉडी उसी को डाइजेस्ट कर रही थी। क्या कर रही थी, हाँ, वो फैट को गला के हाँ उसी को डाइजेस्ट कर रही थी, उसी से किडनी लिवर लंग। ऑटोफेगी कहते हैं उसको, वीना बहन को भी पता है। तो आपकी बॉडी के अंदर जो भी पहले की एलिमेंट्स थी वो उन सबको हील कर रही थी, या एंड देन इट वाज द हीलिंग प्रोसेस वाज गोइंग ऑन। नहीं, हीलिंग प्रोसेस नहीं था, उसके जो सेविंग्स बोलते हैं ना, स्टोरेज होता है हमारे बॉडी। कैन आई ऐड समथिंग दीदी, कैन आई ऐड समथिंग?
या बिकॉज Yes, इसको Rajni, प्रोसीजर को, हाँ, इसको जो आपने अभी बताया ना, दैट इज 100% राइट। जो आपके बॉडी में फैट Yes. डिपॉजिट था ना, जब भी हमारे बॉडी में Yes. कोई चीज एक्सेस में हम खाते हैं तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है, इसको ग्लाइकोजेनोसिस Yes. बोलते हैं। और फिर ग्लाइकोलिसिस Yes. होता है। जब हमको बॉडी की जरूरत रहती है और हम लोग नहीं खाते हैं तो वो बॉडी एटलीस्ट 3-4 महीने तक वो हम लोगों को राइट ग्लाइकोलिसिस और ग्लाइकोजेनोसिस। जब भी हमारे पास ज्यादा हो Yes. जाता है तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। और जब हम जब उपवास करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम लोग फ्रेश तो- फील क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारे अंदर जो फैट होता है वो हमको सब न्यूट्रिएंट्स देती रहती है। दैट इज राइट, आई Yes. थिंक। यस, यस। तो मेरा भी बॉडी जितना भी स्टोरेज था फैट में जो कन्वर्ट हो चुका था मेरे शरीर में, जो मोटापा जो था भरा हुआ, हाँ, तो मेरी बॉडी उसी को एनर्जी में कन्वर्ट करके जनरेट कर रही थी। एंड मेरा किडनी, लीवर, स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम को जिंदा रख रही थी। हाँ, जिंदा रखना भी बहुत जरूरी है, मतलब वो रोलिंग रहना बहुत जरूरी है। अगर नहीं तो वो फेल हो जाते हैं। हम बोलते हैं किडनी फेल हो गई, लिवर फेल हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम फेल हो गया, लंग्स फेल हो गए, हार्ट फेल हो गया। हम बोलते हैं हमारे ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं। क्यों वो फेल हो जाते हैं? हाँ, क्योंकि वो प्रोसीजर करने लायक नहीं रहे। तो मेरी बॉडी वो 10 महीने ये फेल नहीं होने चाहिए। तो इतने फैट जो थे ना, वो उनको कन्वर्ट कर रही थी उन प्रोसीजर के थ्रू जाने के लिए। और यही वजह बन गया था कि मेरी बॉडी सरवाइव कर रही थी उसके ऊपर। तो ये एक और बाबा ने मुझे बताया कि अपनी बॉडी जो है, जो बनी है, जिसको ब्लड की जरूरत है, पानी की जरूरत है, सबकी जरूरत है, उसके सिवाय ये बॉडी सरवाइव नहीं कर सकती। हाँ, पानी के ऊपर सरवाइव करेगी, ज्यादा में ज्यादा कितना सरवाइव करेगी? क्योंकि पानी अकेला एक एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है। और सिंगल एलिमेंट, हमारी बॉडी जो है 5 एलिमेंट से बनी हुई है। तो उसको 5 एलिमेंट से बनी है, तो 5 एलिमेंट की ही चीज की जरूरत है अंदर। ठीक है, तो एक वाटर अगर उसकी पानी पे अगर जी रहा है कोई इंसान, तो वो सिर्फ एक एलिमेंट हो गया, पानी हो गया, एंड दूसरा हो गया एयर, हवा। वो ब्रीथ भी तो कर रहा है ना, पानी भी ले रहा है, ब्रीदिंग भी चल रही है। तो ये 2 ही चीजें अगर वो ले रहा है, बाकी की 3 चीजें अगर उसके अंदर नहीं है, जा रही है, तीसरी चीज भी जा रही, चलो स्पेस। पानी अगर ले रहा है तो स्पेस पुश कर रहा है, उस वजह से ये 3 चीज हो गई। अब नहीं जा रहा है तो अर्थ एलिमेंट नहीं जा रहा है, फायर, अग्नि का जो होता है वो, हाँ, ये नहीं है, ये 2 चीजें नहीं है उसको सपोर्ट कर रही। तो इस वजह से क्या होगा, उसकी उस बॉडी की लाइफ शॉर्ट हो जाएगी। सर्वाइव कर सकते हैं, सर्वाइव किए, बट लॉन्गर पीरियड के लिए नहीं कर सकते हैं। हाँ? ऐसे ही मेरा 10 महीना हुआ, उस 10 महीने में मेरा जो वेट था ना, एकदम घट के विदिन 10 मंथ में एकदम स्किनी बन गई थी। मेरा वेट एकदम 50 केजी के ऊपर आ गया, 50 से भी नीचे आ गया था, 48 केजी हो गया, एकदम पतली हो गई थी। क्योंकि जितना भी फैट था मेरी बॉडी ने उसको यूज कर लिया था। एंड लास्ट में मैं फेंट होना शुरू हो गई थी। हाँ? तब जाके कहीं ना कहीं वो मेरा कर्मा जो था वो फिनिश हुआ। एंड बाबा को मुझे सरवाइव कराना था, कुदरत को मुझे सरवाइव कराना था, उनका पर्पस था मुझे यहाँ पे दुनिया में रखने का। एंड दैट इज द रीजन वाई फिर से मेरा धीरे धीरे खाना शुरू हुआ। प्लीज जयश्री बहन माइक पे ध्यान रखिए। हाँ, धीरे धीरे मेरा स्टार्ट हुआ। तो कैसे स्टार्ट हुआ? पहले सिर्फ खजूर, हाँ, एक खजूर मेरे को फुल डे लगता था, पूरा दिन वो खजूर को डाइजेस्ट करने के लिए। मतलब छोटी छोटी गोली बना के उसको मैं मुंह में रखती थी, और धीरे धीरे वो मेरे सलाइवा सबसे पहले तो सलाइवा मेरे स्वेलो करना चालू किया। सलाइवा भी मैं स्वेलो नहीं कर पा रही थी। वो उसके साथ में मैं वो खजूर को डाइजेस्ट करना शुरू किया। उसके बाद में धीरे धीरे मेरी बॉडी को भी नहीं चला मेरा। कितना दिन चला? 6 मंथ से 7 मंथ तक, उससे ज्यादा नहीं ये कर पाई। थोड़ा सा भी कुछ भी ले रही थी, मैं ज्यादा नहीं कर पा रही थी। मगर उससे क्या हो गया, मेरे बॉडी को सपोर्ट मिलने लग गया फिर से। बॉडी को सपोर्ट मिला,
स्टार्ट तो हो गया वो सपोर्ट मिला। इसके बाद में बाबा ने मुझे चाय के ऊपर सरवाइव करने को छोड़ दिया, इस बॉडी को चाय पे सरवाइव करने को छोड़ा। तो उस चाय के अंदर अदरक आता था, जैगरी आता था, चाय पत्ती आता था, पानी था और दूध था। तो ये सारा प्रोटीन है, ग्लूकोज है, ये सारा कुछ हाँ मेरे बॉडी में जा रहा था एंड इसी वजह से वो ब्लड कन्वर्ट हो रहा था। सो विदाउट दिस हमारा ये 5 एलिमेंट का बॉडी सरवाइव नहीं कर सकता। ये बाबा ने मुझे क्लैरिटी दी। नहीं तो एक सिंगल एलिमेंट के साथ में ये बॉडी ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकती है, हमारे ऑर्गन ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ये मेरे को बाबा ने बताया है, बाकी के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। ब्रिजेरियंस के बारे में या जो सिर्फ पानी पे सरवाइव कर रहे हैं तो उनकी लाइफ कहाँ तक जा सकती है, उनकी बॉडी कितनी सरवाइव कर सकती है, मैंने उनके ऊपर ज्यादा स्टडी नहीं किया है। ठीक है, मैं ये जो है ये जो बातें बताई बाबा ने मुझे इस तरह से बताई। बीच में मैंने अपना ये भी शेयरिंग किया था कि 6 महीने तक मैं पानी नहीं पी पा रही थी। हाँ, मैं पानी नहीं डायरेक्टली पी पा रही थी, मैं चाय के अंदर तो पानी जा ही रहा था, चाय तो पी सकती थी मैं, थोड़ी ही क्यों ना हो, एक मग चाय पी रही थी, मैं चाय के साथ में पानी जा ही रहा था। अब आपको मैं और एक बात बताती हूँ, अगर समझो ब्रिजेरियंस है, अगर वो कुछ भी नहीं है तो उनका इनपुट आउटपुट ही नहीं है, तो यूरिन पास कैसे करेंगे? अगर पानी ही अंदर नहीं है तो तुम्हारे बॉडी से पानी निकलेगा कैसे क्या बाहर? ये एक मेरे को बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वीना बहन ने बोला कि जिन्होंने 70 ईयर्स के जैन मुनि आप बोले ना, उन्होंने ये किया हुआ है ब्रिजेरियंस का इनका, तो उनका मैं खुद एक मेरा अनुभव है कि अगर मैं सिर्फ चाय पे हूँ तो मुझे अगर यूरिन पास करना है तो मैं पानी अगर नहीं पिया, जिस दिन बाहर जा रही हूँ मैं पानी अगर नहीं पिया है हाँ तो उस दिन मैं यूरिन भी पास नहीं करती। मोशन अगर पास करना है, अभी मेरा चाय के ऊपर है तो इकट्ठा मल जो है वो इकट्ठा होता ही नहीं है इतना कि डेली के डेली में पास कर सकूं। मुझे 8 दिन 10 दिन कभी कभी 15 दिन लग जाता है मोशन पास करने के लिए। ये बॉडी सिस्टम है, ये कुदरत का बनाया हुआ मशीन है, ये इसको हम झुटला ही नहीं सकते हैं। तो ये अगर अनुभव है इस चीज को, ये मशीन को चलने के लिए हाँ, तो इसके लिए मुझे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है बाकी की सारी बातों को। और बाबा ने मुझे जब ये बातें समझाई मेरे लिए तो बहुत ही क्लियर हो गया, क्योंकि ये सारी चीजें होती है ब्लड को बनाने के लिए। हमारे हार्ट को पंप करना है तो ब्लड की जरूरत होती है हार्ट को जिंदा रखने के लिए। हार्ट सर्वाइव ही नहीं करेगा, हार्ट फेल हो जाएगा। लंग्स को सर्वाइव करने के लिए एयर की जरूरत है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम एंड किडनी लिवर को सर्वाइव करने के लिए पानी की जरूरत है, खाने की जरूरत है। स्टूल अगर हम पास नहीं करेंगे, हम मोशन पास नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं करेगी। इनपुट आउटपुट दोनों होना जरूरी है, नहीं तो ये बॉडी ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकती। ये बात बाबा ने मुझे समझाई, इसके आगे मुझे पता नहीं है। यस वीना बहन। Om Shanti Devi. Yes, you are telling right, but you said one element is not possible. Yes, but the thing is the absorber. So it will absorb the everything. We know the scientific way of this one. So what they do, Brazilians, what I studied according to that, they more they spend the time in the nature. Sun gazing they do, sunbathing they will do, barefoot walk they will do. They do so many techniques of breathing techniques, pranayama, and different techniques. Most of their life they will be spent in the nature, not in four walls of the system. Not like that they will be always in the nature. They work, they are professionalists, they work, they have family, everything they will do. But most of the time they spend their time in the nature. Through that they will get the energy, I feel, because as we studied, sun is the Aadhar for the power. In the science also we have studied it. Everything will go through sun only, as the fruits, everything, natural food. So when they take the sun gazing or sunbathing with the minimum cloth, the skin will absorb. So through that
they will get all the things, they will observe all the other elements also. As I feel now, what you are telling now, Baba has given me this. So according to studies also the same thing. Maybe like this way and the mentality also will be very much minimalist as you are living, no? Like the same thing they are also living. They're not getting any knowledge of Babas and everything, but maybe their sanskar and they're into this, they are living very minimalist life, not collecting everything, and they'll be roaming all over the world. They're not staying one this one. And one person, what I read him, he is living in the boat only. He sleep like you, 1.5 hours or 2 hours, not more than that. He's looking very healthy and he's a weightlifter also. He also like a Brazilian life he's doing and once in a 6 months or somewhere, something like you, maybe he will take, he told. So before he was also very fat and losing, once he came to this, he left everything. But all this, leave it off. Everything by practice they have done through getting knowledge. But what about that Gujarat Muni, Prahalad Jani? Maybe if you go through, you'll come to know. Once he was in 10-year-old, he left automatically, got some intuition and like that. He left everything eating and not by this to become breatharian, not like anything. He was not thinking about all these things. Automatic mode. So he survived for 70 years. All those people will used to call him Ma. माँ करके बुलाते हैं सब लोगों को. I've seen many videos also. He was doing satsang and everything. He used to wear like a jewelry, muguti, and nose pins, earrings, everything he used to wear, and used to give some what do you say, bhajan type and all. He used to do all the days and all the Jainism used to join with him and do. So at the last moment, yeah. No, the time is going now. So just I'm stopping you. I just want that everyone should think. सोचो तुम कि हमारा जो सिस्टम बना है बॉडी का, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, लीवर है, किडनी है, ठीक है, ये तभी फंक्शन करेगी जब उसके अंदर कुछ जाएगा, नहीं तो वो फंक्शन नहीं करती. बिकॉज एज आई एम जैन, मैंने भी ये फास्टिंग किए हुए हैं, एक महीने के मैंने फास्टिंग किए हुए हैं. जैन फास्टिंग जो होते हैं ना, जिसमें सिर्फ जल पानी पे ही रहते हैं, 1 महीना 6 महीने तक पानी पे रहते हैं, तो वो फास्टिंग भी की है. तो उसमें क्या होता है, स्टार्ट में तो हम पानी पीते हैं, लास्ट में हम पानी भी पीना बंद कर देते हैं, बिकॉज खाली पेट पानी भी नहीं जाता है. तो 4-5 डेज वी डोंट टेक वाटर. अगर पानी नहीं ले रहे हैं तो हम इंटेक अगर नहीं है पानी का, तो हम यूरिन भी पास नहीं करते. ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. अगर हम यूरिन भी पास नहीं कर रहे हैं तो हमारा ये जो सिस्टम है, लीवर, किडनी, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा ये सब रुक जाता है, बंद हो जाता है, शट डाउन हो जाता है. बिकॉज वी आर नॉट गिविंग एनी वर्क. हम कोई भी काम उनको दे ही नहीं रहे करने के लिए, तो वो चुप बंद पड़े. मतलब काम बंद होने की वजह से कभी कभी आपने बीच में सुना होगा, बहुत लोग ये फास्टिंग में 1-2 महीने की फास्टिंग करते हैं, उनकी किडनी फेल हो जाती है. आई डोंट नो, जैन लोगों में हमने ये देखा है, हमारे मैगजीन्स वगैरह आते हैं, न्यूज आती है हमारी, तो उनमें ये आता है कि इन्होंने 1 महीने का फास्टिंग रखा, उनकी किडनी फेल हो गई. इन्होंने 2 महीने का फास्टिंग रखा, किडनी फेल हो गई. तो इससे भी ये पता चलता है कि अगर तुम्हारी बॉडी को चलना है, ये ऑर्गन को अगर वर्क करना है, तो उनको उनकी चीजों को देना जरूरी है. अदरवाइज अगर वो फेल हो गई, समझो फेल होना मतलब वो ऑर्गन मर जाए. वो ऑर्गन अगर काम नहीं करेगा तो वो अंदर सड़ने लग जाता है, खराब होता है. अगर सड़ने लग गया तो उसको निकालना जरूरी है. अगर नहीं निकाला तो वो पूरे बॉडी में पॉइजन फैला देता है. तो ये जब भी मुझे बॉडी का सिस्टम का मुझे इतनी क्लैरिटी है, तो अगर मैं समझो सिर्फ धूप में बैठ के धूप से अगर मेरे अंदर वो ऑर्गन में पानी नहीं जा रहा है, धूप लेकर मेरे इसमें खाना डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं जा रहा है, तो ये अगर सब चीजें अगर नहीं चलेगी तो दे आर इक्वल टू व्हाट आई वांट टू टेल इज मर जाएगी. मैं वही बोल रही हूँ कि ये ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते.
कुछ हद तक सरवाइव करेंगे, ज्यादा नहीं कर सकते। तो बाकी का क्या है इसके पीछे राज, ये तो मुझे पता नहीं है। बट बॉडी एनाटॉमी, बॉडी की जो बनावट है, बॉडी किस तरह से चलती है, आज मुझे कुदरत ने बॉडी के साथ में कनेक्ट होकर उसका डिफेंस मैकेनिज्म किस तरह से वो चलता है ना, वो इतना अच्छे से मुझे वो सिखा रही है ना, इसलिए मुझे ये चीजें ना अभी तक समझ में नहीं आ रही। So sorry, Vinabhen, I stop you in between because the time is up, and that is the reason I just wanted to complete. No problem. No, just curiosity I told. Yes, we have to think it about this. Vinay is not adopting, not to become vegetarian and the like, but the curiosity रहता है ना, so more I'll do studies in that, so I'm getting knowledge like that. That's all. Not right, I'm right, you're wrong, you're right, I'm wrong, not like that. It's a knowledge sharing. That's all. Yeah, thank you very much. बट तुम खुद अपने बॉडी से कनेक्ट होना, कुदरत से कनेक्ट होना, और कुदरत क्या हमें सिखा रही है अपने बॉडी के बारे में, बॉडी मैकेनिक्स के बारे में, अगर देन यू विल नॉट फॉल फॉल्स प्रे। झूठी अफवाह में तुम ये नहीं होंगे। ठीक है, अभी वक्त हो गया है, तो आज इजाजत लेते, कल मिलते हैं। अब कल हम अपना बराबर टॉपिक पे ही चलेंगे। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी, एक बात कहनी है। थैंक यू अगर दीदी। हिंदी नहीं आती है तो भले इंग्लिश में बोले तो हम समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आती है, पर यदि आती है हिंदी तो हिंदी में बात करें तो इतने सारे जुड़े हुए हैं तो फिर सबको सरल लग जाएगा ना। यस, ये तो आप आंसर देते हैं तो सब हम समझ जाते हैं। आप आंसर देते हैं तो हम समझ जाते हैं थोड़ा बहुत जो उसमें क्वेश्चन में नहीं समझते हैं। फिर भी राजीव, हमें भी ये समझना है कि बहुत लोगों को जो साउथ साइड के हैं उनको हिंदी नहीं आती है, फिर भी वो बहुत ट्राई करते हैं हिंदी के वर्ड यूज करके अपनी बातें रखने के लिए। जब वो नहीं कर पाते, वो इंग्लिश में बोलते हैं, तो उनको हेल्प करने के लिए मैं उन्हीं बातों को हिंदी में कन्वर्ट करके सुनाती हूँ। और मेरे से कभी कभी गलती हो जाती है कि मैं उनके साथ में भी इंग्लिश में बात करना शुरू करती हूँ, तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। नहीं आती है तो फिर तो कोई बात नहीं है, अगर आती है तो फिर थोड़ा बहुत हम लोग आपके आंसर से समझ जाते हैं, और थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आती है। थैंक यू दीदी। नहीं, मैं उनके लिए भी बहुत बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि वो बहुत ट्राई करते हैं हाँ उनकी बातें रखने के लिए। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। और आप सभी को भी जो समझने की कोशिश करते हैं, हाथ पैर उठा के और या तो बंद करके नहीं बैठ जाते हैं, बस समझने की कोशिश करते हैं उसके लिए। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।